Hello students, I Pravesh Kumar Vansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. In the last lecture we completed the relation. Today in today's lecture we discuss on function. So let's crack the gate. The first thing is what is function? So if I say function is simply I take input, I give input and this simply gives you output in the terms of either y, either we say y equal to fx. In the x terms we get the output y, then it is called the function. Simply if I say function is a definite, the function is called also called mapping. Either we say it is a transformation. All three have the same meaning. Either we say it is a function, either we say it is a mapping and transformation. So simply definition of function is a function is an association from A to B from a non-empty set x to a non-empty set y such that every element of x is related to unique element of y. Simply definition says if there is a function exists from x to y, then first thing is both the set x and y must be non-empty, means that x and y both have some element and x is related to unique element of y. For example, in the diagram there is a set x, there is a member of x is 1 2 3 and 4 5 and y have a member 2 3 4 5 6 7. In this 1 is related to 2 and 2 is related to 3 and 5 is related to 4 5 7. If I write in the relation is 1 to 2, 1 से 2 के बीच में मैपिंग है, there is a mapping between 2 and 3 and there is a mapping between 5 to 4, 5 to 5 and 5 to 7. This is a relation here. Now we check this relation is a function or not. So for this there is a some important concept like in mathematics a function is a relation between set that associate to every element of first set exactly one element of second set. That means if I write there is a function from x to y, then there are some rules. So first rule number 1, I take new page. There is a two set from x to y and there is a function from x to y. Then first rule number 1 says LHS cannot be null. LHS and RHS cannot be null. That means 1 2 3 4 and 5 and in the y there is 2 3 4 5 6 7. So in this 1 is related to 2 and 3 is related to 4 and let's suppose 5 is related to 5. So in this we want to check this is a function or not. So simply says it is not a function. Why? Because
because in the left hand side 2 and 4 are not mapped. 2 and 4 are not mapped क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 की कोई भी इमेज नहीं है. 2 और 4 क्या है, मेरा किसी रिलेटेड नहीं है. Let's suppose in this diagram if 5 is also related to 6, then in this case 5 have two images. First thing is the 5 and 6. That means if we give 5 as an input, then we get output as a 5, and if we get input as a 6, then we also get output 5. That means for two input we get same output, so that is also not. So simply in mathematics, if fx equal to y, that means y is called the image. Either we say mapping and transformation, and fx is called the pre-image. There are some representation on function. First thing, let's suppose there is a 4 element in set A2, AT and A4, and in set Y there are 3 members B1, B2 and B3. There is set from X to Y, there is a function, and let's suppose A1 is mapped to B1 and A2 is mapped also to B1 and A3 is mapped with B2 and A4 is mapped with B3, and we want to find out if this is a function or not. So simply here we check A1 have a image B1, A2 have a image B1, A3 have a image B2 and A4 has a image B3. So in this there is no problem. Simply all the elements of X is mapped to set Y and all have a unique image. That means it is a function. But in this diagram, if I changes one thing, let's suppose A3 also map to B3. For this arrow there is, then that becomes not function, because A3 have two images B2 and B3. Second, again there are 4 members A1, A2, A3 and A4, and here are some members B1, B2, B3, B4 and B5. There are 5 members B1, B2, B3, B4, 5, and there are 4 members A1, A2, A5. A1 is mapped to B1 and A2 is mapped to B2 and A3 is mapped to B4 and A4 is also mapped to B4. So we want to check this is a function or not. So in this diagram this is again function. Why? Because all the, क्योंकि हमें क्या करना है, x की साइड से चेक करना है यदि x में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यदि वो सबके सब क्या है, मैप्ड है. फर्स्ट थिंग, तो ये फर्स्ट थिंग तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई. इसमें क्या है, ऑल द एलिमेंट्स A1, A2, A3 एंड 4 आर मैप्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ y. सेकंड थिंग, यहाँ पे क्या है कि A3 और A4 हमारी दोनों B4 से मैप्ड है, बट ऐसा नहीं है कि A3 की दो इमेज है. यहाँ पे क्या है, A3 की जो इमेज है डेट इज B4 एंड A4 की भी इमेज B4 है. इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यदि हमारा A3 हमारा B4 से भी मैप्ड होता, B3 से भी मैप्ड होता, देन वी गेट ए प्रॉब्लम. तो सिंपली इट इज ए फंक्शन. थर्ड केस, A1, A2, A3 and A4 and there are B1, B2, B3 and B4. Let's suppose A1 is mapped to B1, A1 is mapped to B2 and A1 is mapped to B3 and B4. तो यहाँ पे क्या हो गया, in this case A1 is mapped to all the elements of B
but A2, A3 and A4 have no image. That means it is not function. So simply I say there is a conclusion for every A that belongs to set X, there is an edge from X to Y. यदि सिंपली यदि ऐसा है डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए फंक्शन, अदरवाइज नो. हम क्या है, सिंपली देयर आर सम रूल्स. फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि x के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो में क्या करना चाहिए, y के साथ एसोसिएट होनी चाहिए. यदि x में क्या हो गया हमारा, एक भी यदि कोई चीज मिसिंग है डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज नॉट ए फंक्शन. तो सिंपली आई से रूल नंबर 1, LHS cannot be null. Rule number 2, there must be a valid entry. Must have valid entry. Valid entry means simply there is set from x to y, then this is map to map. तो यहाँ पे क्या है हमारा b की साइड से छूट सकता है, बट यहाँ पे a में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है मेरे मैप है, तो ये क्या है मेरा अलाउ है. बट यदि मैंने ऐसा करा होता कि हमारा ये x सेट है और ये y सेट है, तो x तो हमारा ये एक तो मैप्ड है बट ये मैप नहीं है, तो इट इज नॉट. रूल नंबर 3, कहीं भी हमारा क्या है, यदि x में हैव टू इमेज, यदि इसमें ऐसा है देन इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. एंड रूल नंबर 4 सेज यदि हमारे x के सेट से एलिमेंट, यदि एक ही एलिमेंट क्या है, दोनों b की एक ही एलिमेंट को मैप कर रहे हैं, देन दिस इज ऑल्सो अलाउड. तो ये 4 रूल का यदि ध्यान रखेंगे देन वी से इट इज ए डेफिनेशन, इट इज ए डेफिनेटली ए फंक्शन. तो फर्स्ट थिंग क्या हो गया, एलएचएस हमारे नल नहीं होना चाहिए. सेकंड क्या है, इट मस्ट हैव ए वैलिड एंट्री. तो वैलिड एंट्री में क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एलएचएस मस्ट बी मैप्ड विद द सेट वाई. सेकंड थिंग क्या हो गया हमारा, एलएचएस से एक्स साइड से यदि हमारे लेफ्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट हमारे बी के 2 मेंबर को एक साथ यदि हमारा क्या कर रहा है, मैप कर रहा है, देन इट इज नॉट अलाउड. तो सिंपली इन दिस डायग्राम यदि हम चेक करें तो 3 की क्या है, कोई हमारी इमेज नहीं है. इन दिस 3 हैव नो इमेज, 4 हैव नो इमेज, तो इट इज नॉट ए फंक्शन. और लाइकवाइज जो 5 है, 5 की क्या है हमारी 3 इमेज है, 4, 5 एंड 7, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. अब हमें फाइंड आउट करना है, इफ सेट ए हैव m नंबर एंड सेट बी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी. तो हमारे फंक्शन हमें पॉसिबल निकालना है, कितने हो, क्या फॉर्मूला होगा. सिंपली अब मैंने क्या कहा था कि हमारे फंक्शन की हमारी क्या कंडीशन है. लेट सपोज फर्स्ट आई टेक सम जनरलाइज, लेट सेट ए है 3 एंड सेट बी है 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो इन दिस केस वी वांट टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. लेट सपोज सेट ए में मैंने 3 मेंबर्स ले लिए, 1 2 3 ए बी सी, और सेट बी मैंने 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए. फर्स्ट थिंग इज 0 एंड सेकंड थिंग इज 1. तो यहाँ पे मैंने क्या है, ए में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, ए बी सी, एंड सेट बी में 0 एंड 1. नाउ वी वांट टू मैप. फर्स्ट थिंग क्या है, ए को मैं क्या करूँ 0 से रिलेटेड कर दूँ, बी को मैंने 0 से रिलेटेड करा दूँ, एंड सी को मैंने 0 से रिलेटेड करा. तो इट इज पॉसिबल या इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फर्स्ट केस. सेकंड केस ए बी सी एंड इधर हियर इज 0 एंड 1, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ए बी सी अब क्या है, पहले हमने 0 के साथ मैप करा, अब क्या करें हम, ए को मैंने 0 से मैप कर दिया,
एंड बी को मैंने 0 से मैप कर दिया एंड सी को मैंने मैप कर दिया 1 से, तो इट इज ए पॉसिबल फंक्शन। थर्ड केस, अगेन ए बी सी और यहाँ पे 0 एंड 1, मैंने ए को 0 से मैप कर दिया, बी को मैंने 1 से मैप कर दिया और मैंने सी को भी क्या कर दिया 1 से मैप कर दिया, देन इट इज ए ऑल्सो पॉसिबल फंक्शन। फोर्थ, ए बी एंड सी और हियर इज अगेन 0 1, तो ए इज मैप टू 1 एंड बी एंड सी both are mapped to 0, so it is also a function। लाइकवाइज यदि हम चेक करें तो एक क्या हो रहा है, हमारा पैटर्न बन रहा है। तो यदि हम पहले कहें तो यदि सिंपली आई से यदि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन हमारे कैसे निकल रहे हैं, तो यदि हम यहाँ पे पैटर्न देखें, यहाँ पर क्या है 3 बिट है ए बी सी और 3 बिट से टोटल नंबर ऑफ मुझे 0 1 के कॉम्बिनेशन निकालना है। यदि इफ आई थिंक लाइक इन डिजिटल, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास टोटल 3 बिट्स है, इसको ये थिंक अबाउट इट दैट इज 3 बिट और मुझे क्या करना है 0 1 के क्रॉसपोर्डिंग क्या मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है। तो पहला क्या है मेरा ए से ए की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, बी की वैल्यू 0 हो गई एंड सी की वैल्यू 0, तो इट गिव यू कॉम्बिनेशन 0 0 0। इन दिस केस ए एंड बी हैव बोथ हैव 0 एंड सी हैव वैल्यू 1, तो दिस इज 0 0 1। इन दिस केस ए हैव वैल्यू 0 and b have value 1 and c have value 1, so this is 0 1 1। in this case a have value 1 and b have value 0 and c have value 0, so this is 1 0 0। likewise fifth case 0 0 1 हो गया, that is 0 1 0, so that means a b c 0 and 1, तो हमें क्या निकालना है, we want to 0 1 0, तो 0 1 0 के लिए क्या होगा मेरा बी मेरा 1 से रिलेटेड होगा और ए एंड सी क्या होंगे मेरे 0 से रिलेटेड होगा, तो दिस इज अगेन फंक्शन। 6 इज 0 0 1 0। नेक्स्ट ए बी सी 0 1, हम क्या करें ए को भी 1 से रिलेटेड कर दें, बी को भी 1 से रिलेटेड कर दें एंड सी को भी 1 से रिलेटेड कर दें, तो इट गिव यू कॉम्बिनेशन 1 1 1। लाइकवाइज 7 कॉम्बिनेशन क्या रह गया हमारा 1 0 1, नेक्स्ट इज 1 0 1, तो नेक्स्ट ए बी सी 0 1, तो ए हमारा क्या हो गया 1 से रिलेटेड है एंड बी मेरा 0 से रिलेटेड है एंड सी क्या है मेरा 1 से रिलेटेड है, तो इट गिव यू कॉम्बिनेशन 1 0 1। एंड लास्ट एक कॉम्बिनेशन और रह गया है, दैट इज 1 0 1 0, that is give you 0 1 2 3 and 4 5 6 5 6 1 1 0, तो in this case a b c 0 1, so in this a is related to 1, b is related to 1 and c related to 0, so that gives you 1 1 0। so by 3 bit combination, by 3 bit we make 8 total number of possible, that is 0 0 to 1 1 1, तो that means क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे क्या हो गए। यदि हम इसको फॉर्मूले में डिराइव करें तो क्या हो रहा है हमारा जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड के हमारे उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज 3, तो इट गिव्स यू 2 की पावर 3, टोटल इज 8। लाइकवाइज इफ यू जनरलाइज इज, तो सिंपली आई से यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में क्या है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड लेफ्ट हैंड साइड में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन फॉर्मूला बिकम्स n की पावर n, तो समटाइम दिस फॉर्मूला बिकम्स कंफ्यूजन, तो सिंपली I say if you learn from this formula right hand side have a power left hand side। हम इस तरह से यदि फॉर्मूले को याद करोगे कि RHS की पावर क्या हमारी LHS है, फिर RHS में मतलब क्या हो गया राइट हैंड साइड में जो सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यदि इस तरह से याद रखेंगे तो कभी हमें कन्फ्यूजन नहीं हो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे n की पावर m। On the basis of this there are some question that comes in the gate। So first question is the number of function from a m element set
टू ए एन एलिमेंट सेट इज। तो सिंपली आई राइट हियर, भाई मैंने फॉर्मूला बताया, सिंपली क्या है, मुझे m से n की तरफ जाना है। डेट मीन्स क्या हो गया, n क्या हो गया मेरा, RHS हो गया। तो सिंपली टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन क्या हो गए, RHS की पावर लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो हमारा क्या हो गया, RHS में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में m। तो टोटल फॉर्मूला बिकम्स n की पावर m, देन सी ऑप्शन इज द सेकंड क्वेश्चन। सपोज x and y are set and mod x and mod y are their respective cardinalities and it is given there is exactly 97 function। तो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन gives you 97 from x to y। तो इस कंडीशन को यदि मुझे ट्रू करना है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्वेश्चन में सिंपली ये कह रहा है गेट 96 का क्वेश्चन कि हमारी x की वैल्यू क्या होगी कार्डिनलिटी और y की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली यदि मैं बात करूं तो हम क्या करना है, हमें टोटल 97 फंक्शन निकालना है। तो मेरा सिंपली फॉर्मूला क्या होता था कि 97 इज इक्वल टू n की पावर m। तो मुझे क्या है, n की वैल्यू क्या होगी और m की वैल्यू क्या होगी, जो मुझे क्या होगी 97 देगी। तो सिंपली क्या हो गया यहाँ पे, यदि मैं n की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 97 इक्वल टू मॉड y की पावर मॉड x। तो यहाँ पे क्या है, मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि जो मुझे वैल्यू 97 दे। यदि हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 97। तो ये क्या दे रहा है 97 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 97। तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा 2। डी ऑप्शन क्या कहता है, y की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर क्या हो गई 97, तो ये इट गिव्स यू टोटल वैल्यू 1। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। लाइकवाइज सी सेज 97 की पावर 97, दैट मींस क्या होगा, इट इज रॉन्ग एंड डी इज आल्सो रॉन्ग। तो देन देयर इज ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, mod x इक्वल टू 1 एंड mod y इक्वल टू 97। थर्ड क्वेश्चन, let x y and z be a set of size x y z and w equal to x क्रॉस y। तो मीन्स क्या हो गया, जो w हो गया वो क्या हो गया, x और y का क्या हो गया, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। एंड लेट e बी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ d, e is the set of all subset of w। यदि मैं बात करूंगी, यदि ये सेट थ्योरी में मैंने तुम्हें बताया था द सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। दैट मीन्स क्या हो गया, आइदर आई से द सेट ऑफ ऑल सबसेट, आइदर इज आई से पावर सेट ऑफ w। तो पावर सेट ऑफ w का मतलब क्या हो गया, p ऑफ w। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 2 क्या होंगे हमारे 2 की पावर, अब w में हमारे कितना e, मतलब 2 की पावर मॉड e। तो अब सिंपली क्या है, अब हमें एक एक करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। w की वैल्यू निकालो, e की वैल्यू निकालो और उसको सिंपली फाइंड आउट करो। तो इसमें फर्स्ट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन यू चेक योर आंसर। तो सिंपली क्या हो गया हमारा, जो e क्या हो गया पावर ऑफ w, तो ये क्या हो गया, सिंपली आई राइट है, इसको मैं क्या करूँ 2 की पावर मॉड w कर दूँ। तो हमारा क्या है, फंक्शन जो है हमारा क्या है, फ्रॉम z टू e मुझे कैलकुलेट करना है, z टू e। तो z टू e का मतलब क्या हो गया, z टू e में टोटल फंक्शन क्या हो गया, मतलब राइट हैंड साइड में क्या होंगे, फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z। सिंपली यदि मैं बात करूं तो टोटल फंक्शन ये है। अब एनी और एन जेड की वैल्यू मुझे यहाँ से कैलकुलेट करनी। तो एनी की वैल्यू क्या हो गई मेरी, ई क्या है मेरे पास, ई इज द क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ डब्ल्यू। तो डेट मीन्स क्या हो गया, एनी का मतलब क्या हो गया 2 की पावर मॉड डब्ल्यू की पावर एन ऑफ जेड। अब एन ऑफ जेड क्या है मेरा, जेड यदि हम देखें तो क्या है, जेड इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो इसको मतलब क्या हो गया, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर डब्ल्यू की पावर जेड। और जेड क्या है हमारा
x कार्टेशियन प्रोडक्ट y। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे मेरे, x इंटू वाई। यही तो होता है इन द सेट थ्योरी। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू एन। यदि हमारे x में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और y में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन वी से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट w इज द x इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या है, अब मैं z को रिप्लेस कर दूंगा। तो z पे यदि मैं रिप्लेस कर दूंगा फ्रॉम एक्स वाई, देन वी सिंपली गेट 2 की पावर x y सॉरी टू गेट डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या दे रहा है, मैं एक्स वाई दे रहा है, तो एक्स वाई की पावर जेड, तो इट गिव्स यू टोटल 2 की पावर एक्स वाई जेड। तो सिंपली डी ऑप्शन इज अ ट्रू आंसर। इसमें देखो हमने क्या क्या है, डब्ल्यू हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है एक्स क्रॉस वाई, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मेरे, एक्स इंटू वाई। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। ई क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ डब्ल्यू, दैट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए पावर सेट ऑफ डब्ल्यू, दैट इज टोटल 2 की पावर डब्ल्यू। अब तो सिंपली क्या है, और मैं फंक्शन पॉसिबल निकालने, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या था, राइट हैंड साइड की पावर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड। तो एन ई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2 की पावर डब्ल्यू, और एन जेड की वैल्यू सिंपली जेड, और डब्ल्यू की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ली एक्स वाई, तो टोटल इज द 2 की पावर एक्स वाई जेड। तो दिस गिव टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शन f denoted by n and number of function from s निकाल। तो इसमें क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, इसमें s दे रखा मैं, s denotes the set of all function from 0 1 की पावर 4 to 0 1, और n दे रखा हमारा, n इज द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम s टू 0। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें गिवन है वो हमने लिख ली, और उसका क्या है, मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मुझे फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, log बेस टू n। तो सिंपली क्या है, मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। यदि अब यहाँ पे बात करें, यदि मैं इसमें बात करूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, यहाँ पे पावर 4 है से लेकर 2 में आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, यदि मैं इसको कहूँ कि इसके पास क्या है 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इसके पास क्या है, मेरे पास 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब 16 एलिमेंट मेरे 2 एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं कहूँ तो मॉड एस क्या हो जाएगा मेरा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने हो जाएंगे इसमें, एस इज 2 की पावर 16। अब लाइक वाइज इन द सेकेंड केस, अब एस निकाल लिया है मैंने, एस क्या वैल्यू 2 की पावर 16 आई है, और 0 1 का मतलब क्या हो गया 2। तो डेट मीन्स क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे इसमें एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, राइट हैंड साइड में कितने वैल्यू 2, 2 की पावर लेफ्ट हैंड साइड क्या 2 की पावर 16, डेट गिव्स यू 2 की पावर 16। तो मेरे एन की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मुझे सिंपली क्या है, इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू को पुटअप करना है, सिंपली log बेस टू एन की वैल्यू क्या है 2 की पावर 16। तो यहाँ पे क्या है, टिस 2 से ये दोनों लॉग कट जाएंगे, और फाइनली वी गेट 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट क्या है हमारा, एस सेट क्या कह रहा है हमारा, एस इज डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 की पावर 4 टू 0 1। तो 0 1 टू पावर 4 का मतलब क्या हो गया, ये हमारे क्या है, टोटल 16 वैल्यूज से मैंने मैप करी है 2 वैल्यूज में 0 1 में। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे एस की वैल्यू आ गई 2 की पावर 16, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या हो गया 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 16 वैल्यू, तो दैट मींस टोटल फंक्शन इज 2 की 16। अब एन क्या कह रहा है मेरा, एस टू 0 1 कर रहा है, तो एस की वैल्यू ने ऊपर से निकाली 2 की 16, और 0 1 मीन्स 2, तो हमने मॉड एन की वैल्यू निकाली, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल इज 2 की पावर 2 की 16। तो सिंपली आई पुट वैल्यू ऑफ एन इन द फॉर्मूला एंड सिंपली वी गेट द 16 आंसर। Next is the let n be the set of natural number, consider the following set। हमें क्या है इसमें निकालना है, विच आर काउंटेबल। ये क्वेश्चन सेट थ्योरी में भी लिया था, बट सेट थ्योरी में क्या है,
दे दीजिए टू ऑप्शन क्यू एंड आर, ये क्या है मेरे फंक्शन के थे तो वहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया था, इसको हम यहाँ पे अब सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसमें क्या है, मुझे क्या सिंपली फाइंड आउट करना है कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो क्या है मेरे काउंटेबल है। तो फर्स्ट पी ऑप्शन के से सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म। रैशनल नंबर क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म। बट मैंने हमने उस समय हमने काउंटेबल में एक चीज पढ़ी थी कि जो इरेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे मेरे, कभी भी काउंटेबल नहीं होंगे, बट रैशनल नंबर क्या होंगे मेरे, काउंटेबल होंगे यदि मैं क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो डेट मीन्स क्या हो गया, जो पी है वो क्या होंगे मेरे काउंटेबल। सेकंड क्या है, बी क्यू ऑप्शन से सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू n। तो हमारा क्या हो गया, 0 1 का मतलब क्या हो गया टू वैल्यू, और n का मतलब क्या हो गया नेचुरल नंबर n हो गया, सिंपली आई से n। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने हो गए इसमें हमारे, फंक्शन पॉसिबल राइट हैंड साइड में क्या हो गई n, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या हो गई n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस गिव्स यू n स्क्वायर फंक्शन हो गए। तो n स्क्वायर फंक्शन क्या है हमारे, वैलिड है, इसको हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं। तो डेट मीन्स क्या हो गया, क्यू ऑप्शन इज ऑल्सो काउंटेबल। आर ऑप्शन से सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम n टू 0 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 1 मतलब क्या हो गया टू वैल्यू, तो मतलब क्या हो गया 2 की पावर n। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे क्या होंगे, इट इज नॉट काउंट। क्यों, इसके लिए बेटा एक थ्योरम भी है, वो भी याद रखना हमेशा। थ्योरम सेज इफ ए सेट s is countable, if a set s is countable, then power of set that is 2 की पावर s is uncountable। तो हमारे पास क्या है, यदि हमारा n क्या है नेचुरल नंबर, जो हमारे क्या होंगे +1 टू इंफिनिटी। तो यदि ये क्या है हमारे काउंटेबल है, ये काउंटेबल होते ही हैं, और ये क्या है ये भी काउंटेबल है, तो जो उसका पावर सेट निकालना है, तो ये सी ऑप्शन क्या कहता है हमारा 2 की पावर एस दे रहा है, डेट इज ए पावर सेट। तो जो पावर सेट है ये क्या है हमारा, इट इज नॉट काउंटेबल। तो ये आर ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे काउंटेबल नहीं है। सेट एस ऑप्शन से सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। तो फाइनाइट सबसेट तो क्या होंगे मेरे, हमेशा भी काउंटेबल होंगे, चाहे मैं एन का 1 ले लूँ 2 ले लूँ 3 ले लूँ, तो वो क्या होंगे हमेशा काउंटेबल होंगे। तो डेट मीन्स क्या है, देयर आर 3 काउंटेबल एस क्यू एंड पी। तो पी क्यू एंड ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन फ्रॉम n प्लस टू n प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमारी क्या है उसने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट थिंग इज एफ एन इक्वल टू एफ एन बाई टू इफ एन इज इवन। यदि हमारा क्या है नंबर एन क्या है इवन है, तो सिंपली क्या कह रहा है उसको आधा हाफ कर दो, और इफ एन इज ऑड देन सिंपली इफ वी ऐड द +5 टू दैट नंबर, देन इट सेज लेट r is equal to I such that there exists some j for which we get fj equal to I। तो वो क्या कह रहा है, सिंपली यदि हम बात करें तो वो क्या कह रहा है कि हमारा जो r एक जो रिलेशन है ये क्या कर रहा है, ऐसे I जो क्या है उसके लिए कोई हमारा j क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर विच यदि मैं एफ जे दूँ तो वो वैल्यू क्या दे रहा है I दे रहा है। तो ये क्या है, ऐसा रिलेशन मुझे मिले तो मुझे इसमें फाइंड आउट करना है कि सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू जो मेरा क्या है पॉसिबल साइज ऑफ आर का क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, ऐसे जे निकालना है। यदि मैं एफ ऑफ जे रख रहा हूँ तो मुझे अगेन क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। तो सिंपली आई से यदि मैं नंबर लेता हूँ, यदि मैं नंबर लेता हूँ लेट सपोज 2 लेता हूँ, लेट सपोज एफ ऑफ 2। यदि मैं 2 लूंगा तो क्या होगा, एन इज इवन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई, एन इज 2। तो n क्या हो गया, इवन हो गया, तो इवन होगा तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, डेट इज f1। लाइक वाइज इफ आई टेक f6, यदि मैं f6 लूंगा तो क्या होगा, f6 को हाफ कर देगा, डेट इज f3। ऐसे ही यदि मैं f8 को लूंगा तो क्या होगा, f8 को ये f4 में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे अब f4 को कन्वर्ट करेगा तो f4 अगेन इवन है तो ये क्या हो जाएगा f2 में आ जाएगा, और f2 अगेन इवन है तो इट गिव्स यू अगेन f1। लाइक वाइज यदि हम चेक करें, यदि मैं ऐसे ही F14 चेक करूं तो F14 क्या देगा, मैं F7 देगा, F7 देगा। लाइक वाइज यदि मैंने F12 लिया तो F12 का क्या हो जाएगा, F6 हो जाएगा, और F6 का क्या हो जाएगा, F3।
लाइकवाइज F9। तो ये क्या होंगे, जितने भी हमारे होंगे ये सब क्या होंगे, एक सेट में आएंगे। यदि हम देखें, यदि मैं टू लेता हूँ तो उसको क्या कर देगा, सिंपली हाफ कर देगा, मतलब 1 कर दे रहा है। यदि मैं 6 वैल्यू ले रहा हूँ तो उसको हाफ कर दे रहा है। तो इस तरह से यदि मैं देखूँ तो 1 1 2 3 4 फिर 6 7 8 9, तो ऑल द वैल्यूज जो मेरी क्या है 5 को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब क्या आ रही है, इस सेट में आ जा रही है। सेकंड क्या बनेगा हमारे सेकंड सेट, जब मैंने F5 लिया। एक में तो क्या है, मैंने n की वैल्यू 2 3 4 ये सब ली, अब क्या 5 ली तो क्या होगा, 5 को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। यदि मैं F10 लूंगा, अब 10 क्या हो गई मेरी, इवन हो गई, तो ये 10 क्या हो जाएगी, अगेन 5 बन जाएगी। इसी तरीके से क्या है F15, जो भी हमारे ये 5 के मल्टीपल्स हैं वो हमारे इसमें आ जाएंगे। तो देयर बिकम्स टू सेट, एक में क्या होगी 5, जो 5 के मल्टीपल होंगे, और सेकंड में क्या होंगे, अदर वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर। तो इन दिस टोटल वी गेट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट, हमें क्या निकालनी है, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी है एट टेक। तो हमारा क्या होंगे, देयर इज टू सेट, एक में तो 5 के मल्टीपल्स होंगे और बाकी में अदर वैल्यूज। टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो क्या होगा, एक तो वैल्यू 5 की उसमें आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगी अगेन 5 में और 2 में। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू दैट एफ टेक्स इज द 2। और इसको यदि मैं सिंपली यदि सी प्रोग्रामिंग में हम बात करें तो इस फंक्शन के लिए करस्पॉन्डिंग जो मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। कैसे, लेट सपोज फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स है। इफ x इज इक्वल टू 1, देन वी से सिंपली रिटर्न x, else if x is equal to 5, then it return y. if x mod 2, यदि आप क्या करूं मैं, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, यदि 2 से वो डिविजिबल है, डेट मीन्स इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को हाफ कर देना, डेट मीन्स f ऑफ x/2। एल्स क्या कर रहे हैं, सिंपली हम 5 उसमें इंक्रीमेंट कर दें। सिंपली ये हमारी क्या होगी, इसकी रिकर्सिव एल्गोरिथम हो गई। तो सिंपली क्या है, फर्स्ट वाला सेट क्या दे रहा है, मैं f(1) हमारा दे रहा है, यहाँ पे देखो ये f(1) दे रहा है, और सेकंड क्या दे रहा है, मेरा 5 दे रहा है। तो जहां भी क्या होगा, x की वैल्यू 1 होगी तो वो मैं सिंपली उसको रिटर्न कर देगा, यदि 5 है तो वही वैल्यू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज क्या है, यदि हमारा 2 से डिविजिबल है तो f(x/2) हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो यदि इसको ये लिखने का तरीका, इस रिकर्सिव फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते थे और इस तरह से लिख सकते थे। तो आई थिंक आज के लिए इतना है, इनफ है। और इन द नेक्स्ट लेक्चर we discuss some other properties of function. Okay, thank you.